Om Shanti. Good morning, everyone. So, we will continue with yesterday's Murli, where Baba was very beautifully, he was reminding us about the power of enthusiasm. How, when we are enthusiastic, then we can serve Baba so beautifully. So, let me share. So, I'm going to continue from here, I think. Yeah, I had read till here. So Baba is saying, Acha, what will all the Pandavas do? You will always remain enthusiastic, will you not? Say yes loudly. And what will the Shaktis do? Do not ever let go of enthusiasm. The enthusiasm now is shown in the form of a smile on your non-living images. Right? Goddess of enthusiasm is Uma Devi. So I think that's what Baba is referring to. Non-living images. The energy of enthusiasm is shown through her image. So they always show a very powerful face. When any Bhagat initiates any task, he goes in front of your image to take enthusiasm and courage from it. And then begins the task. You are souls with such enthusiasm that your non-living images are still giving enthusiasm to others. They are giving courage. The images of the Mahavirs, the Pandavas, is very well known. The images of the Mahavirs. I was talking about Mahavir, Hanuman, and also Ganesh. So that is very well known. Weak ones go to a Mahavir to take power. There are so many devotees of Hanuman, Mahavir, Hanuman. So Baba says, just by going in front of that picture, that image, weak souls, they are able to get the power. So it's our memorial. Our memorial, people have been taking so much from our memorials. Acha, to the extremely elevated, fortunate children of all four directions, to those who constantly become the point of light and stay in zeal and enthusiasm to reveal Baba, who is a point of light, to those who constantly hoist the flag of Baba's revelation in their heart. Congratulations for the birth as valuable as diamond of the Father, and so of the children who constantly fly with congratulations and will continue to fly. To those who remain in such enthusiasm, to those who celebrate with festivity at all times, to those who create enthusiasm in others, to such powerful souls, love, remembrances, congratulations, and namaste from Trimurti
Shiva the father. So this finishes the main Murli, and now Baba is talking to double foreigners. So there is no translation available in English, so I'm going to read in Hindi. डबल विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से मुलाकात। बाप और बच्चों का इतना दिल का सूक्ष्म कनेक्शन है जो कोई की ताकत नहीं जो अलग कर सके। वो दिखाते ना, वो एक ऐड दिखाते हैं इंडिया में कि वो दो एलिफेंट है, वो चिपके हुए हैं, उनकी पूंछ चिपकी हुई है, और कह रहे हैं ना कि फेविकोल का ऐसा जोड़ है, एलिफेंट को भी सेपरेट नहीं कर सकते, इतना पावर है उसमें। तो उसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि बाबा और बच्चों का इतना दिल का सूक्ष्म कनेक्शन है कि कोई की ताकत नहीं जो अलग कर सके। ये लाइन सुनी तो वही इमेज याद आ गई, बचपन में देखा करते थे, फेविकोल का जोड़ है ये। तो हमारा भी इतना पावरफुल कनेक्शन, बाबा कह रहे हैं कि अगर हमारा कनेक्शन बाबा के साथ इतना अच्छा है, इतना लव है हमारा बाबा से, तो किसी की ताकत नहीं जो हमको अलग कर सके। तो सबसे बड़े ते बड़ा नशा बच्चों को सदा यही रहता है। क्या रहता है? कि दुनिया बाप को याद करती, लेकिन बाप किसको याद करता? दुनिया वाले बाबा को याद कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, और भगवान किसको याद कर रहा है? कितनी सुंदर बात कही बाबा ने। बाप किसको याद करता? बाप को तो फिर भी आत्माएं याद करती, लेकिन आप आत्माओं को कौन याद करता? कितना बड़ा नशा है ये। नशा सदा रहता है, कम ज्यादा तो नहीं होता, कभी उड़ते, कभी चढ़ते, कभी चलते, ऐसे तो नहीं। हमारी क्या स्टेज है, हमारे मन की स्थिति कैसी है? बाबा कह रहे हैं जांच करो, चेक करो। ऐसा तो नहीं कभी चल रहे हैं, कभी चढ़ रहे हैं, कभी उड़ रहे हैं, है ना? बाबा कहते हैं अभी तो सिर्फ उड़ना ही उड़ना है। अब न चलने का समय है, न दौड़ने का समय है, अब तो सिर्फ उड़ना है। और उड़ना भी कैसे है? तीव्र गति से उड़ना है, धीरे धीरे भी नहीं उड़ना। हमारा पुरुषार्थ अब, उस दिन बाबा ने कहा ना पिछली संडे की मुरली में, कि अब पुरुषार्थ करने का समय नहीं है, अब तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है। तो न पीछे हटने वाले हो, न रुकने वाले हो, लेकिन स्पीड चेंज हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि और पीछे जा रहे हैं। तो अब तो पीछे जाने का सोचना भी नहीं है, न रुकना है न पीछे जाना है, सिर्फ आगे ही बढ़ते जाना है। वो भी चलना चढ़ना नहीं है, लेकिन उड़ना है। तो बाप दादा सदा बच्चों का खेल देखते रहते हैं। कभी चलना शुरू करते हैं, फिर क्या होता है? कोई न कोई ऐसा सरकमस्टेंस बन जाता है, फिर जैसे कोई धक्का देता है तो चल पड़ते हैं। जैसे चलते चलते कभी गाड़ी रुक जाती है ना, तो उतर के फिर धक्का देना पड़ता है, तो फिर चल पड़ती है। तो ऐसी ही आत्माओं की हालत है। बाबा कह रहे हैं कि बाबा को भी आके धक्का देना पड़ता है। हम सुस्त हो जाते हैं, अटक जाते हैं, खो जाते हैं, तो बाबा आके हमको धक्का लगाता है कि चलो उठो, करो, पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो। तो ऐसे कोई न कोई बात ड्रामा अनुसार होती है, जो फिर से उड़ती कला की ओर ले जाती है। क्योंकि ड्रामा अनुसार पक्के निश्चय बुद्धि हैं। दिल में संकल्प कर लिया कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो ऐसी आत्माओं को स्वतः मदद मिल जाती है। बाबा को अगर हमने सब कुछ अपना समर्पित कर दिया,
अभी कुछ दिनों से बाबा बलिहार जाने की बात कर रहे हैं ना। एक बाबा पर बलिहार जाओ, अपना सब कुछ तन मन धन बाप पर अर्पित कर दो, तो अपने आप क्या होगा, अपने आप बाबा की मदद मिलती चलेगी। निश्चय, ड्रामा में निश्चय, बाबा में निश्चय, स्वयं में निश्चय, परिवार में निश्चय, तो अपने आप हमें बाबा की मदद मिलेगी। तो मदद मिलने में कितना समय लगता है, पूछ रहे हैं बाबा। तो किसी ने कहा सेकंड। देखो फोटो निकल रहा है, बाप का कैमरा सेकंड में सब निकाल लेता है। बाबा के पास बहुत बड़ा कैमरा है और वो काम करता है सेकंड में। सेकंड में सब कुछ, जो भी कुछ है वो बाबा कैप्चर कर लेते हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन बाप और सेवा से कभी भी किनारा नहीं करना है। याद करने में व पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे तो भी जबरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो, ठीक हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं करते रहो, बस करते रहो। मन नहीं भी लग रहा है तो भी लगाते रहो, क्योंकि माया ट्रायल करती है। ये थोड़ा सा किनारा कर ले तो आ जाओ इसके पास। माया तो वेट ही करती रहती है, कब हम थोड़ा सा अलबेले हो जाएं, आलस दिखाएं तो वो पकड़ ले। तो इसलिए कभी किनारा नहीं करना, नियमों को कभी नहीं छोड़ना। अगर मन नहीं भी लग रहा है, बाबा कह रहे हैं, तो भी जबरदस्ती बैठो। नियमों को नहीं, कभी नहीं छोड़ना। अपनी पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे, लेकिन दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो, है ना। क्योंकि बाबा ने जो नियम बनाए हैं, जो दिनचर्या बनाई है, उससे आत्मा को बहुत ताकत मिलती है। ईश्वरीय नियमों का पालन जितना हम अच्छी तरह से एक्यूरेटली करते चलेंगे, हमको ताकत मिलती चलेगी। उस समय भले अगर हमको लग भी रहा है कि नहीं, हमारा मन नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी बाबा कहते करते चलो, कभी ब्रेक नहीं हो उसमें। भारत में कहते हैं जितना कायदा उतना फायदा, कहावत है। जितना कायदा मतलब जितना नियम पे चलेंगे उतना फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये जो कायदे बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, इसको कभी भी मिस नहीं करना है। देखो आपके भक्त अभी तक आपका नियम पालन कर रहे हैं। इवन दुनिया में भी कहते हैं कि अगर मान लो कोई सवेरे उठता है, रोज़ सवेरे उठता है, लेकिन वीकेंड पे अगर नहीं उठता, रोज़ अगर सुबह मान लो 6 बजे उठता है, लेकिन अगर वीकेंड पे वो 8 बजे तक सोता रहता है या 9 बजे तक सोता रहता है, तो इट इज़ वेरी अनहेल्दी। वो बीमारी की जड़ है, बीमारी का कारण बन जाता है। इवन दुनिया वाले साइंस में भी कह रहे हैं कि रोज़ हमको एक ही समय पे उठना चाहिए, चाहे वीकेंड हो चाहे वीकेंड न भी हो। एक जो नियम है सवेरे उठने का, उसको कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए, है ना। भले अगर हम आफ्टरनून में थोड़ा रेस्ट कर लें, लेकिन सुबह का जो नियम है उसको ब्रेक नहीं करना है। तो वही बाबा भी हमको यही कह रहे हैं। बाबा ने तो पहले ही बता दिया, वो साइंस वाले तो बाद में उनको समझ में आया। तो इवन भक्ति मार्ग में भी वो कितने नियम से चलते हैं। वो उनका उठने का समय सवेरे सवेरे होता है ना। तो वही बाबा कह रहे हैं, देखो आपके भक्त अभी तक आपका नियम पालन कर रहे हैं। चाहे मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे ज़रूर। ये किससे सीखे? आप लोगों ने सिखाया ना। जो भी कुछ अभी हम करते हैं वो हमारे भक्त हमको कॉपी करते हैं। तो हमने इतने अच्छे से नियम का पालन किया, बाबा ने जो हमें सिखाया उसको हमने एक्यूरेटली फॉलो किया, तो भक्ति मार्ग में फिर वो लोग भी रोज़ मंदिर जाते हैं, रोज़ पूजा करते हैं। तो सदैव ये अनुभव करो कि जो भी मर्यादाएं व नियम बने हैं उसको बनाने वाले हम हैं। आपने बनाया है या बने हुए मिले हैं? पूछ रहे बाबा, किसने बनाया?
आपने बनाया या बने हुए मिले हैं? बाबा ने ही तो बना के दिया ना हमको। मिले हैं। लॉ मेकर्स हो या नहीं? अभी जो कुछ हम करते हैं वो लॉ बन जाता है, तो लॉ मेकर्स हुए ना। अमृत वेले उठना ये आपका मन मानता है या बना हुआ है इसलिए इस पर चलते हो? पूछ रहे हैं बाबा। आप स्वयं अनुभव करते चलते हो या डायरेक्शन या नियम बना हुआ है इसलिए चलते हो? आपका मन मानता है ना। तो जो मन मानता है वह मन ने तो नहीं बनाया ना। मन मान रहा है मतलब मन किसी की सुन रहा है ना। तो कोई मजबूरी से तो नहीं चल रहे हो कि करना ही पड़ेगा। सब मन को पसंद है ना, क्योंकि जो खुशी से किया जाता है उसमें बंधन नहीं लगता है। कोई चीज़ हम खुशी खुशी कर रहे हैं इसका मतलब कोई बंधन नहीं ना। बंधनवश अगर हम कोई भी कर्म करेंगे तो फिर उसमें खुशी नहीं मिलती। तो यहाँ बाप ने आदि मध्य अंत तीनों कालों की नॉलेज दे दी है। कुछ भी करते हो तो तीनों कालों को जान करके और उसी खुशी से करते हो। हमेशा बाबा ने कहा ना कि हमें त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिकालदर्शी होकर के हर कर्म करना है। नॉलेजफुल होकर हर कर्म करना माना मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर आदि मध्य अंत को जान करके फिर हमें कर्म करना। तो उसमें क्या होता है? सफलता मिलती है। तो सफलता मिलती है तो आगे बाबा कहते कुछ भी करते हो तो तीनों कालों को जान करके और उसी खुशी से करते हो। तो दो बातें, जो भी कर्म हम करें एक तो मास्टर त्रिकालदर्शी होकर करें और खुशी खुशी करें, है ना। जो बाबा ने कल हमने सुना कि उमंग उत्साह के साथ करें। उमंग उत्साह रहेगा तो खुशी भी रहेगी। तो बाप देखते हैं कि कमाल करने वाले बच्चे हैं। हम कौन हैं? कमल पुष्प समान जीवन व्यतीत करने वाले, कमाल करने वाले बच्चे। तो बाप से प्यार अटूट है, इसलिए कोई भी बात होती है तो भी उड़ते रहते हैं। बाप से प्यार में सभी फुल पास हो। बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया हमको। सब बाबा के प्यार में फुल पास हैं। पढ़ाई में नंबरवार हो लेकिन प्यार में नंबर 1 हो। तभी तो हम बाबा के पास आए ना, प्यार ही तो खींचा ना। सेवा भी अच्छी करते हैं लेकिन कभी कभी थोड़ा खेल दिखाते हैं। जैसे बाप से नंबर 1 प्यार है, ऐसे मुरली से भी प्यार है। पूछ रहे हैं बाबा, है प्यार मुरली से? प्यार है तभी तो सुनते हैं ना रोज मुरली। तो जब से आए हो तब से कितनी मुरलियां मिस हुई होंगी? कभी कोई ऐसे बहाने से क्लास मिस किया है? ये सब चेक करने के लिए बाबा कह रहे हैं। जैसे बाप को याद करना मिस नहीं कर सकते, ऐसे पढ़ाई मिस न हो। पढ़ाई कभी मिस न हो। इसमें भी नंबर 1 होना है। पढ़ाई में नंबर 1 होना है। बाप के रूप में याद, शिक्षक के रूप में पढ़ाई और सद्गुरु के रूप में प्राप्त वरदान कार्य में लगाना, ये तीनों में नंबर 1 चाहिए। बाबा चाहते हैं हम सब नंबर 1 में जाएं। तो वरदान तो सबको मिलते हैं ना, लेकिन समय पर वरदान को कार्य में लगाना, इसको